अच्छा बच्चे, starting with the name of Allah Almighty. In today's lecture, we are going to discuss the numericals of chapter number 14. But before that, there is an overview regarding the chapter 14 that we have already discussed. In chapter number 14, we are going to discuss about the payout policy, or in most common language, we may say that we are going to discuss that how the company is going to distribute the earning. Fine. As long as the earning is concerned, you have the idea that the net profit of the company will be given to two parties. First one will be the preferred stock, second one will be the common stock. And if after giving the dividend or the earning to these two parties, if there will be any amount left, that amount will be named as retained earning. Fine. So chapter number 14 is all about the payout policy. So it can be that the company may give 100% as a dividend, may company can give, for example, 50% as a dividend, and 50% will be the retained earning, or the company can retain all the amount and there will be no dividend given to the shareholders. Fine. Later on we have the discussion about the dividend mechanism. Always remember that the amount of dividend will be decided at annual general meeting, AGM. At the time of annual general meeting, you will before annual general meeting, there will be no obligation on the company to pay the dividend. Dividend payable is basically a liability. Before the date or before the happening of the annual general meeting, this dividend will not be considered as a liability, but at the time of AGM, when you will announce the dividend, after the announcement, that dividend will become the liability of an organization and they will have to pay the dividend. At the time of AGM, for example, announcement date will be, for example, 1st June. On 1st June, you have announced the dividend that we are going to pay dividend to the shareholders. You have to give the date of record. What is date of record? It means you are giving certain margin period to all the holders of your share. हमारा holder of share का मतलब क्या है कि मैंने फॉर एग्जांपल एंग्रो के शेयर्स परचेज़ किए हैं, मैंने पीएसओ के शेयर्स परचेज़ किए हैं, लेकिन वो मेरे पास हैं, मैंने कंपनी के रिकॉर्ड में अपने पास नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि मैंने जाके स्टॉक एक्सचेंज से परचेज़ कर लिया था। स्टॉक एक्सचेंज से परचेज़ करने के बाद मुझे यही जहन में था कि कंपनी के ये जब भी इस शेयर की प्राइस मार्केट में बढ़ेगी, मैं इसे जाके सेल कर दूंगा। बट इट डजेंट मीन कि जब मुझे डिविडेंड की पता चलेगा तब मैं जाके उसे सेल करने लग जाऊंगा। मैं कहूँगा चलो ये शेयर्स परचेज तो किए हुए हैं, क्यों ना कंपनी के रिकॉर्ड में इसका अपना नाम लिखवा देता हूँ, ताकि जब कंपनी डिविडेंड दे तो इन शेयर्स पे मुझे डिविडेंड अर्निंग भी हो जाए। ठीक हो गया। तो डेट ऑफ रिकॉर्ड का कॉन्सेप्ट क्या है कि आप अपना एक मार्जिन पीरियड दे रहे हैं अपने शेयर होल्डर्स को, जो कि होल्ड कर रहे हैं इस वक्त आपके शेयर्स को। फॉर एग्जांपल हम मार्जिन पीरियड देते हैं 10th जून का। इट मीन्स you have near about 10 days. During 10 days, if you will get a news that the company is going to announce the dividend till 10th June, you have the time to register the shares by your name within the record of the company. और फिर उसके बाद है डेट ऑफ पेमेंट या पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन डेट, वो हम एग्जांपल में ले लेते हैं 15th जून। यानी जो भी शेयर होल्डर्स अपने आप को 10th जून तक रजिस्टर करा लेंगे, उन शेयर होल्डर्स को 15th जून को डिविडेंड डिविडेंड मिलेगा। ये सिंपल 3 कॉन्सेप्ट्स आपके डिस्कस हो गए। ये रिव्यू दे रहा हूँ आपको, चैप्टर नंबर 14 हमने पहले ही डिटेल में पढ़ लिया। इस जो ये वाली जो डिविडेंड है इसे पेमेंट डेट कहते हैं। ठीक हो गया। फिर आता है कि सर क्या इट इज़ पॉसिबल कि कंपनी अपने शेयर्स को परचेज़ कर ले? यस, कंपनी किसी ख़ास वजूहात की वजह पे अपने शेयर्स को रीपरचेज़ करती है। और जब हम शेयर्स को रीपरचेज ऑफ ओन शेयर्स की बात करते हैं, एट दैट टाइम वी आर गिविंग देम द नेम ट्रेजरी स्टॉक, TREASURY, ट्रेजरी स्टॉक। ट्रेजरी स्टॉक कौन से होते हैं? जब कंपनी अपने ही शेयर्स को मार्केट से परचेज़ कर ले। ठीक हो गया। अब इसमें 2-3 तरीक़ों से परचेज़ करती है। पहला क्या तरीका है? ओपन मार्केट। ओपन मार्केट में हमारे पास कौन सी एग्जांपल है? पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। आपने जाके अपने शेयर्स को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से परचेज़ कर लिया। दूसरी चीज़ क्या है? टेंडर ऑफर। कंपनी अखबार में नोटिस देगी कि वी आर गोइंग टू परचेज़ आर शेयर। जिसने अपने शेयर्स को सेल करना चाह रहा है वो कंपनी से कांटेक्ट करे। ठीक हो गया। इसके बाद आपकी जो अगली डिस्कशन है वो डच ऑक्शन सिस्टम। डच ऑक्शन सिस्टम का तरीक़ाकार क्या है कि कंपनी इज़ गोइंग टू अनाउंस द रीपरचेज ऑफ द शेयर। उसमें हमें बताते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने 2000 शेयर्स परचेज़ करने हैं
और इसकी वैल्यू जो हम देंगे वो $13 पर शेयर होगी। और हमेशा याद रखिएगा एट द टाइम ऑफ डच ऑक्शन आपके शेयर की प्राइस मार्केट प्राइस से हमेशा ज़्यादा होती है। अगर मैं कहूँ कि मार्केट में शेयर की प्राइस $10 है और आप भी कहें कि मैं भी $10 का डच ऑक्शन में ख़रीदूंगा, तो ये बात आएगी कि सर वो फिर मार्केट में क्यों ना जाके सेल कर लें। तो हमेशा होता यही है कि डच ऑक्शन में कंपनी जो शेयर की प्राइस सेट करती है वो मार्केट की प्राइस से ज़्यादा होती है। ठीक हो गया। फिर आता है एक और टॉपिक, जो कि है डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान। क्योंकि हमने अपनी अर्निंग को शेयर होल्डर्स को दे देना होता है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान एक अपॉर्चुनिटी होती है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, डेट सर वी आर गिविंग यू अ चांस टू री इन्वेस्ट द अमाउंट ऑफ डिविडेंड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। आप अपने जो शेयर की अमाउंट आपको मिल रही है वो ऑर्गेनाइजेशन को वापस दे दें। हम उसे आपके हवाले से नए शेयर्स परचेज कर लेते हैं या नए प्रोजेक्ट में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपके लिए आपके नाम की भी इन्वेस्टमेंट हम कर देते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी पे आउट पॉलिसीज़ होती कौन कौन सी हैं। सबसे पहली पॉलिसी हमारी होती है रेजिडुअल डिविडेंड पॉलिसी। अकॉर्डिंग टू रेजिडुअल डिविडेंड पॉलिसी कंपनी will use the net profit to decide future investment, future needs, retire long term debts and many other more expenses। कंपनी ने वो जो नेट इनकम इस्तेमाल हो रही है उससे फ्यूचर की प्लानिंग वगैरह कर ली या लॉन्ग टर्म डेट्स क्लियर कर ले। इफ़ एनीथिंग विल लेफ्ट, तो फिर उनमें से हाँ प्रेफर स्टॉक डिविडेंड भी दे दिया। अगर कुछ बचेगा उसे कहते हैं रेजिडुअल। रेजिडुअल का जो उर्दू मीनिंग है डेट मीन्स बचा कुचा, लेफ्ट, अ थिंग डेट इज़ लेफ्ट, जो बाकी बच जाएगा वो डिविडेंड की फॉर्म में दिया जाएगा। ये आपका रेजिडुअल डिविडेंड पॉलिसी है। ठीक हो गया। इसके बाद आपका कॉन्सेप्ट आता है क्लाइंटल इफेक्ट का। क्लाइंटल इफेक्ट या क्लाइंटल पॉलिसी क्या होती है डिविडेंड की, जैसे क्लाइंट यानी हमारे शेयर होल्डर डिसाइड करेंगे हम वैसी पॉलिसी बना देंगे। इसमें कोई फिक्स पॉलिसी नहीं होती, जैसे जैसे रिक्वायर करते जाते हैं आपके क्या नाम शेयर होल्डर्स, आप उसी हिसाब से अपनी पॉलिसी क्रिएट करते जाते हैं। फिर हमारे पास होती है फिक्स डिविडेंड पॉलिसी या कांस्टेंट पे आउट पॉलिसी। कांस्टेंट पे आउट पॉलिसी में क्या होता है कि आपने एक फिक्स रेशो दे दी जाती है, यानी फॉर एग्जांपल हमारी जितनी भी अर्निंग होगी उसका 8% आपको डिविडेंड मिलेगा। ये फिक्स पे आउट है या कांस्टेंट डिविडेंड पॉलिसी है। या आपका ये होगा कि आपने फिक्स डॉलर डिविडेंड डिसाइड किया कि हर साल आपको $3 मिलेगा। ज़्यादातर ये प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स के हवाले से होता है। तो इसमें क्या होता है कांस्टेंट पे आउट पॉलिसी, आपको कॉन्स्टेंटली वही डिविडेंड मिलता रहता है। फिर है रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी। अब रेगुलर और कांस्टेंट में फ़र्क क्या है। रेगुलर का मतलब ये नहीं है कि हमने एक फ़िक्स रेशो डिसाइड किया। रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी है कि आपकी जो डिविडेंड पॉलिसी है वो रेगुलर बेसिस पे चेंज होती रहेगी, लेकिन डिविडेंड लाजमी मिलेगा। आपने कोई एक पॉलिसी डिसाइड की और उसे आप चेंज करने, कांस्टेंट पे आउट पॉलिसी का मतलब है यही परसेंटेज मिलेगी। रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी का मतलब है कि आपको रेगुलरली डिविडेंड तो मिलेगा लेकिन उसके ऊपर कोई फिक्स रेशो नहीं है कि इतने ही परसेंट मिलेगा। मतलब वो 8% पहले साल हो सकती है, अगले साल 20% हो सकती है, फिर दोबारा 11% हो सकती है, फिर 8% हो सकती है, फिर 5% हो सकती है। तो रेगुलर का मतलब ये वाला आ गया। फिर उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आता है लो रेगुलर एंड एक्स्ट्रा डिविडेंड पॉलिसी। इन लो रेगुलर एंड एक्स्ट्रा डिविडेंड पॉलिसी ऑलवेज रिमेंबर दैट द कंपनी pays a low dividend as compared to the market but that will be regular। यानी अगर ए कंपनी है और बी कंपनी है, बी कंपनी एक साल डिविडेंड देती है $10 का, अगले साल नहीं देती, फिर तीसरे साल फिर दे देती है $10 का, फिर अगले चौथे साल नहीं देती, फिर वो $3 देती है। यानी आप ये देखेंगे कि
हमारे लिए कोई रेगुलर बेसिस पे डिविडेंड नहीं मिलता, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता। ये 2 सालों में दूसरे और चौथे साल में नहीं मिल रहा। जबकि एक कंपनी कहेगी कि हम आपको सिर्फ $2 दिया करेंगे, लेकिन दिया लाजमी करेंगे। तो इसे कहते हैं रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी, रेगुलर डिविडेंड। एक्स्ट्रा डिविडेंड पॉलिसी क्या है? एक्स्ट्रा डिविडेंड पॉलिसी ये चेंज भी हो सकती है, ये $3 भी हो सकती है। एक्स्ट्रा डिविडेंड पॉलिसी क्या है कि उन सालों में जब कंपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या किसी खास अमाउंट से ज़्यादा अर्निंग क्रिएट करेगी, अर्निंग पर शेयर हर साल आपकी कंपनी का $2 है, $2 है, लेकिन एक साल वो $60 हो गया, तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या था कि सर हमारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अर्निंग हुई है, तो जब भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अर्निंग होगी उस अर्निंग का एक ख़ास परसेंटेज आपको डिविडेंड दिया जाएगा। ये एक्स्ट्रा डिविडेंड पॉलिसी। लो रेगुलर यानी लो डिविडेंड मिलेगा, लेकिन मिलेगा रेगुलरली। एक्स्ट्रा डिविडेंड पॉलिसी, जब हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अर्निंग क्रिएट करेंगे तो उसमें हम आपको एक एक्स्ट्रा डिविडेंड या एक्स्ट्रा अमाउंट डिविडेंड की दे देंगे। ठीक हो गया। इसके बाद आपका कॉन्सेप्ट आता है स्टॉक डिविडेंड का। मोस्टली जब हम डिविडेंड का कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं तो हमारे माइंड में कैश डिविडेंड होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कैश डिविडेंड हो, आप स्टॉक डिविडेंड भी दे सकते हैं। स्टॉक डिविडेंड क्या है कि एक बंदे के पास अगर एक शेयर हो कंपनी का, सॉरी ये $1 लिख दिया, 1 शेयर हो कंपनी का, तो आप क्या करेंगे, अगली मरतबा उससे एक और शेयर दे देंगे। ये एक और शेयर जो आप मुझसे फ्री में दे रहे हैं, ये उसका स्टॉक डिविडेंड है। ठीक हो गया। फिर इसके अंदर एक परसेंटेज आपने जहन में रख लेनी है कि अगर कंपनी के 100 शेयर्स हैं या किसी के पास 100 शेयर्स हैं कंपनी के, अगर उसका 20% यानी 20 शेयर्स, ये 20 की जो है ये मैंने फिक्स रेशो बता रहा हूँ, इसका जहन में आपने रखना है कि 20 शेयर्स या उससे कम शेयर्स देंगे तो इसे हम कहेंगे स्मॉल स्टॉक डिविडेंड। यानी अगर ए बंदा अली है, अली के कंपनी के पास 100 शेयर हैं, कंपनी उसे स्टॉक डिविडेंड देना चाहती है, अगर तो 20% यानी 20 शेयर्स या 20 से कम शेयर्स देगी तो उसे स्मॉल स्टॉक डिविडेंड कहेंगे। और अगर उसी 100 का 21 शेयर्स दे रहे हैं यानी 21% शेयर्स दे रहे हैं, तो 21 शेयर्स को हम क्या कहेंगे, 21 या उससे ज़्यादा शेयर्स को हम लार्ज स्टॉक डिविडेंड कहेंगे। ठीक है। फिर स्टॉक स्प्लिट का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आपका एक शेयर हो मार्केट में $50 का, $50 का, उसे आपने 2 शेयर्स में कन्वर्ट कर देना है कि $25 के 2 शेयर्स बनाना, इसे स्टॉक स्प्लिट का कॉन्सेप्ट कहते हैं। ठीक हो गया। फिर लास्ट कॉन्सेप्ट जो आपकी बुक में डिस्कस हुआ है वो है रिवर्स स्टॉक स्प्लिट का। अच्छा, रिवर्स स्टॉक स्प्लिट का कॉन्सेप्ट क्या है? रिवर्स स्टॉक स्प्लिट का कॉन्सेप्ट ये है कि जब आपने ये वाली एक्टिविटी की, अब आपने दोबारा उन दोनों शेयर्स को कंबाइन किया 25 और $25 का, और उससे क्या कर लिया, एक दोबारा शेयर बना लिया $50 का। ये इस एक्टिविटी को रिवर्स स्टॉक स्प्लिट कहते हैं। दैट इज़ द एंड ऑफ द थ्योरेटिकल ओवरव्यू। ठीक है। अब इस ओवरव्यू के बाद हमारी डिस्कशन शुरू होती है न्यूमेरिकल्स की। पहला हम पढ़ते हैं डिविडेंड पे आउट पॉलिसी। एट द क्वार्टरली डिविडेंड मीटिंग वुड शूज डिक्लेयर्ड अ कैश डिविडेंड $1.10 पर शेयर। उन्होंने अपना $1.10 पर शेयर डिविडेंड डिक्लेयर किया। ठीक हो गया। अब उसके बाद क्या होता है कि कंपनी ने कहा कि हमने अगर ये $1.10 कैश डिविडेंड दिया है फॉर होल्डर्स ऑफ रिकॉर्ड, यानी हमारे पास कुछ ना कुछ रिकॉर्ड में होल्डर्स आएंगे, उन लोगों को हमने $1.10 डिविडेंड देना है ऑन मंडे जुलाई 10। ठीक हो गया। द फर्म हैज़ 3 लाख शेयर्स ऑफ कॉमन स्टॉक आउटस्टैंडिंग। कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं वो 3 लाख हैं। एंड हैज़ सेट अ पेमेंट डेट, और जो पेमेंट डेट जिस उन्हें एक्चुअली डिविडेंड मिलेगा वो 31 जुलाई है। प्रायर टू द डिविडेंड डिक्लेरेशन से पहले द फर्म्स की कंपोनेंट वर एज फॉलोज। उनके जो कैश के फॉर्म में पैसे पड़े थे डेट वॉज 5 लाख। डिविडेंड पेएबल, ये अब देखें ना, मैंने आपको पहले भी जब अभी डिस्कशन की थी ओवरव्यू में, मैंने आपको कहा था कि डिविडेंड पेएबल बिफोर द एनुअल जनरल मीटिंग वो 0 होता है,
लेकिन जब एनुअल जनरल मीटिंग हो जाती है और आपका डिविडेंड अनाउंस हो जाता है उसके बाद उसकी वैल्यू आ जाती है। रिटेन अर्निंग में कितने पैसे पड़े हुए थे? 25 लाख। शो द एंट्रीज आफ्टर द मीटिंग एडजॉर्न, जब आपकी मीटिंग हो गई, जब आपने मीटिंग वो कर ली तो आपके जो डिविडेंड जब आपकी मीटिंग हो गई तब आपने क्या एंट्रीज परफॉर्म करनी है। अब ये है तो अकाउंटिंग की एक्टिविटी, तो हमने कितना डिविडेंड देना है? $1.10। तो पहली तो बात हम यहाँ पे सिंपल सा ये करेंगे कि सर व्हाट इज़ द डिविडेंड अमाउंट। डिविडेंड अमाउंट निकालने के लिए आपने $1.10 को 3 लाख शेयर्स जो कि हमारे कॉमन स्टॉक के हैं उससे मल्टीप्लाई करने हैं, तो आपको टोटल डिविडेंड अमाउंट मिल जाएगा $3,30,000। ये आपने डिविडेंड देना है। वो कहते हैं एंट्री परफॉर्म करके दिखाएं, तो ए पार्ट में हम एंट्री परफॉर्म करते हैं। ए में हमने एंट्री परफॉर्म करनी है। जब मीटिंग एडजॉर्न यानी मीटिंग ख़त्म हो गई तो उसके बाद हमारी एंट्री क्या होगी? हमारी लाइबिलिटीज़ बढ़ गई और हमारी रिटेन अर्निंग से 3,30,000 की वैल्यू हमने लेनी है। रिटेन अर्निंग क्या है? इक्विटी। इक्विटी बढ़ने पे क्रेडिट पे होती है। जब आप 3,30,000 की अपनी इक्विटी कम करेंगे, क्योंकि आपने इक्विटी में से पैसे उठा के डिविडेंड में देने हैं, तो आपकी रिटेन अर्निंग कम होगी। जब रिटेन अर्निंग कम होगी तो वो डेबिट साइड पर आ जाएगी विथ 3,30,000, और जो डिविडेंड पेएबल है वो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा विद द सेम 3,30,000। ये हमारा ए पार्ट सॉल्व हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद बी पार्ट में देखें, व्हेन इज़ एक्स डिविडेंड। एक्स डिविडेंड का कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको ओवरव्यू में नहीं समझाया, वो समझ ले। एक्स डिविडेंड होता है वो कौन सी डेट है जब आप मार्केट से जाके कंपनी का शेयर परचेज करेंगे लेकिन आपको उसके ऊपर डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो अब उन्होंने कंपनी ने हमें कब कहा है कि रिकॉर्ड की डेट क्या होनी चाहिए? जुलाई की 8 जो कि मंडे है। अब मैं यहाँ पे ज़रा वो ड्रॉ करता हूँ, ये लिख रहा हूँ मंडे, इससे पहले आएगा संडे, इससे पहले आएगा सैटरडे, इससे पहले आएगा फ्राइडे, इससे पहले आएगा थर्सडे। अच्छा, मंडे को क्या तारीख है? जुलाई 10। पहले क्या होगा? 9, फिर 8, फिर 7 और 6। आपको अपने नाम से शेयर रजिस्टर कराने में 3 दिन लगने हैं। 3 दिन का मतलब क्या है कि उन 3 दिन के बाद, यानी ये पहला दिन, 1 से लेकर 1 यानी 6 से लेकर 7 तक पहला दिन, 7 से लेकर 8 तक दूसरा दिन, 8 से लेकर 9 तक तीसरा दिन और 9 से लेकर 10 तक चौथा दिन। ये पहला दिन, दूसरा दिन, ये तीसरा दिन। आपको ये तकरीबन, अगर आप यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो ऑन 9th आपका कंप्लीट होता है प्रोसेस, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं कि एक्स डिविडेंड डेट वो कैसे बनी। 6 तारीख से हमने प्रोसेस स्टार्ट किया, फ्राइडे को वो पहला दिन बन गया, सैटरडे संडे की आ गई छुट्टी, उसे आप ख़त्म कर दें। इन दोनों दिन को हम कंसीडर ही नहीं करते। फ्राइडे से लेकर मंडे को हुआ वो दूसरा दिन, वर्किंग डे बन गया, ठीक है। और आप जब अपने आप को रजिस्टर कराएंगे वो आएगा ट्यूसडे, जो कि 11 जुलाई। लेकिन उन्होंने कंपनी का रिकॉर्ड कब से ले लेना है? मंडे की 10 तारीख को। यानी आप रिकॉर्ड में 11 तारीख को आएंगे लेकिन उन्होंने 10 तारीख तक का रिकॉर्ड लेना है। तो यानी 6 तारीख वो डे। अगर आप 5 तारीख से करते, वेडनेसडे से करते, तो वेडनेसडे से थर्सडे तक पहला दिन, थर्सडे से फ्राइडे तक दूसरा दिन, फ्राइडे से मंडे तक जो कि दरमियान में 2 दिन निकालने का तीसरा दिन, आपका मंडे में आप रिकॉर्ड पे आ जाते। अगर आप 5 जुलाई को एक्टिविटी करेंगे तो आप कंपनी के रिकॉर्ड में नाम आ जाएंगे, तो आपको एक्स डिविडेंड नहीं बनेगा, आपको डिविडेंड मिलेगा। लेकिन क्योंकि हमने 6 से प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो 6 से फ्राइडे तक पहला दिन, फ्राइडे से मंडे तक 2 दिन, 2 दिन में आपका नाम रजिस्टर में नहीं आएगा। इसका मतलब है 6 जुलाई, थर्सडे इज़ बेसिकली द एक्स डिविडेंड डेट। ये आपका बी पार्ट सॉल्व हो गया। 6 जुलाई से अगर आप प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो थर्सडे फ्राइडे पहला, फ्राइडे से मंडे दूसरा, 2 दिनों में आपने रजिस्ट्रेशन में नहीं आते, आपको एटलीस्ट 3 डेज चाहिए होते हैं। सो फॉर दैट पर्पज़ 6 जुलाई विल बी द एक्स डिविडेंड डेट, ठीक हो गया। ये आपका बी पार्ट सॉल्व हो गया। सी पार्ट में कहते हैं what values would the key account have after July 31st पेमेंट। जब आपने 31 जुलाई की पेमेंट कर ली तो ये जो आपको इनमें क्या क्या चीज़ें फ़र्क नज़र आएंगी, इनमें क्या क्या तब्दीलियाँ नज़र आएंगी, तो आप लिखोगे आफ्टर 31 जुलाई कैश में कितनी कमी आ जाएगी? 3,30,000 कम हो जाएंगे। 5 लाख में से 3,30,000 जब आप माइनस करेंगे डेट विल बी 1,70,000। उसके बाद डिविडेंड पेएबल कितना रह जाएगा? जब आपने, क्योंकि पेमेंट तो आपने कर दी है, पेमेंट तो आपने 30 जुलाई को कर दी थी,
अब 31 जुलाई को कर दिया, अब पेबल कितना रह गया, 0, कुछ पेबल नहीं रहा। और रिटेन अर्निंग में कितनी अमाउंट रह जाएगी, 3,30,000, यहाँ से कमी कर दें 25 लाख में से, तो आपके पास 21,70,000 की रिटेन अर्निंग रह जाएगी। ये आपका प्रोसेस कंप्लीट हुआ डी पार्ट का। उसके बाद आ जाए सी पार्ट का, अब आ जाते हैं डी पार्ट में। व्हाट इफेक्ट इफ़ एनी वुड द डिविडेंड हैव ऑन द फर्म्स टोटल एसेट। तो आप लिखेंगे टोटल एसेट्स ऑफ कंपनी will decrease by 3,30,000। सिंपल सी बात कि टोटल एसेट्स में कमी आ जाएगी। ई पार्ट क्या, इग्नोरिंग जनरल मार्केट फ्लक्चुएशन, व्हाट इफेक्ट इफ एनी विल द डिविडेंड हैव ऑन द फर्म स्टॉक प्राइस ऑन एक्स डिविडेंड डेट। अब मैंने इसके ऊपर आपको एक छोटी सी बात समझानी है कि क्योंकि एक्स डिविडेंड डेट के अंदर आपको ये मालूम हो चुका होता है कि मैं इस कंपनी को, अगर इसके कंपनी को शेयर्स को परचेज़ करूं तो मुझे इस पर कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा, तो कोई भी उस कंपनी के शेयर्स को परचेज़ नहीं करना चाहेगा। तो सिर्फ उस डेट के ऊपर आपके शेयर की प्राइस मार्केट में $1.10 पर शेयर कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो भी आपका शेयर परचेज़ करने का आएगा, 10 रुपये का आपका शेयर है, तो वो कहेगा कि नहीं, अगर मैं 10 रुपये का लेता हूँ तो मुझे तो इस पर डिविडेंड नहीं मिलेगा क्योंकि आज तो एक्स डिविडेंड की डेट है। तो आपको वही शेयर मार्केट में $8.9 का मिलेगा। मैं ये एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ कि $10 का अगर शेयर प्राइस हो, क्योंकि $1.10 उस पर डिविडेंड मिलने, और आज अगर आप शेयर परचेज़ करोगे आपको कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा, तो आपकी मार्केट में शेयर प्राइस $1.10 एज इट इज़ गिर जाती है। ठीक है, तो क्या इफेक्ट आएगा शेयर प्राइस के ऊपर, तो आप लिखोगे शेयर प्राइस विल डिक्रीज बाय $1.1। ठीक है, आपकी ये शेयर प्राइस $1.1 कम हो जाएगी। ठीक हो गया। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, जो कि हमारा है प्रॉब्लम नंबर 2 के ऊपर। प्रॉब्लम नंबर 2 में अगर आप देखें, वो कहते हैं कैथी स्नो विशेज टू परचेज द शेयर्स ऑफ काउंटडाउन। कैथी स्नो इज बेसिकली द इन्वेस्टर। ठीक है, शी इज़ विलिंग टू परचेज द शेयर्स ऑफ काउंटडाउन कंपनी के। ठीक है, कंप्यूटिंग इनकॉर्पोरेशन। द कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव डिक्लेयर्ड अ कैश डिविडेंड ऑफ $0.80 टू बी पेड टू द होल्डर्स ऑफ रिकॉर्ड ऑन वेडनेसडे May 12। वेडनेसडे May 12 में जो हमारे रिकॉर्ड में शेयर होल्डर्स होंगे उन्हें हम $0.80 पर शेयर डिविडेंड देंगे। अब रिक्वायरमेंट नंबर 1 में है, व्हाट इज़ द लास्ट डेट दैट कैथी कैन परचेज द स्टॉक एंड स्टिल रिसीव द डिविडेंड। वो कौन सी डेट है कि अगर वो अपने उस कंपनी के शेयर्स को परचेज कर ले तो उसे कंपनी के जो है ना मिल जाएगा, डिविडेंड मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे ज़रा क्रिएट करते हैं कि कंपनी ने डिविडेंड, ये ए पार्ट 14-2। ठीक है, यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ। ये वेडनेसडे आ गया, ये ट्यूसडे आ गया, ये मंडे आ गया, ये सैटरडे आ गया, ये संडे आ गया, ये संडे आ गया, ये सैटरडे आ गया, और ये फ्राइडे आ गया। अब 3 दिन ध्यान में रखने के सर 3 दिन का प्रोसेस कंप्लीट कराएं तो तब हमें डिविडेंड मिलेगा। वेडनेसडे से ट्यूसडे पहला दिन, ट्यूसडे से मंडे दूसरा दिन, और मंडे से फ्राइडे, दरमियान में ये 2 दिन कैंसिल हो गए छुट्टी की वजह से, ये तीसरा दिन। तो फ्राइडे विल बी द डेट ऑन विच इफ़ यू विल परचेज द शेयर्स ऑफ द कंपनी ऑफ द काउंटडाउन यू विल रिसीव द डिविडेंड, आपको फिर भी डिविडेंड मिलेगा। तो वेडनेसडे को अगर जुलाई की 12 है तो ये 11, ये 10, ये 9, ये 8 और ये 7, तो 7th ऑफ जुलाई फ्राइडे विल बी द डेट जिसमें अगर आप शेयर परचेज करेंगे तो फ्राइडे से मंडे पहला दिन, मंडे से ट्यूसडे दूसरा दिन, ट्यूसडे से वेडनेसडे तीसरा दिन, आप वेडनेसडे को कंपनी के रिकॉर्ड में आ जाएंगे और आपको डिविडेंड मिलेगा। ये ए पार्ट सॉल्व हो गया। बी पार्ट में देखें, व्हाट डे डज दिस स्टॉक बिगिन एक्स डिविडेंड। तो एक्स डिविडेंड डेट आपकी कौन सी बन जाएगी, मंडे, क्योंकि मंडे को अगर आप शेयर परचेज करेंगे तो मंडे से ट्यूसडे पहला दिन, ट्यूसडे से वेडनेसडे दूसरा दिन, 2 दिन में आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं कराएंगे, इट मीन यू विल नॉट बी एबल टू रिसीव द डिविडेंड ऑफ दिस कंपनी। तो आपके लिए वो क्या बन जाएगा, एक्स डिविडेंड डेट बन जाएगा। तो हम यहाँ पे सिंपल लिखते हैं कि मंडे विल बी द डे ऑन विच इफ़ यू विल, डेट उन्होंने पूछी है, डे पूछा है, मंडे विल बी द डे ऑन विच इफ़ यू विल परचेज द शेयर इट विल बी एक्स डिविडेंड डेट। अब आपको इस शेयर के ऊपर डिविडेंड नहीं मिलेगा। उसके ऊपर आ जाए सी पार्ट में, व्हाट चेंज इफ एनी would you expect in the price per share when the stock began trading on the ex dividend date। तो आप यहाँ पे सिंपल सी आपने बात लिखनी है कि the stock price on ex dividend date will decrease by, stock price on ex dividend date will decrease by
$0.80। ठीक हो गया। उसके बाद डी में आ जाए, इफ़ कैथी हेल्ड द स्टॉक फॉर लेस देन 1 क्वार्टर एंड देन सोल्ड इट फॉर 39 पर शेयर। अगर कैथी उसके कंपनी के शेयर्स को परचेज़ कर लेती है, होल्ड फॉर लेस देन 1 क्वार्टर, यानी तकरीबन 3 महीनों से भी कम अरसे के लिए अगर वो शेयर को परचेज़ करती है, एंड देन सोल्ड इट फॉर $39 पर शेयर, would she receive a higher investment return by 1 buying the stock prior to the ex-dividend date at $35 per share and collecting $0.80, or by buying it on ex-dividend date at $34.20 per share but no receiving the dividend। इस पॉइंट को मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ, क्यों? यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए इस वाले पॉइंट को मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। ठीक है। अगर किसी बच्चे पेपर में भी ऐसे इसका पार्ट नहीं मैं दूंगा, लेकिन आप लोगों को समझने के लिए सिर्फ ये चाहिए कि अगर उसने $35 को लिया है टू द बाइंग द स्टॉक प्रायर टू द एक्स डिविडेंड डेट को उसने 35 का लिया एंड कलेक्टिंग $0.80। अब उन्होंने नंबर ऑफ शेयर्स आपको वैसे बताए नहीं है, आप इसमें $0.80 ऐड कर दें तो इट विल बी 36 पॉइंट। मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ, आसान सा है लेकिन परेशान नहीं होना। ये मेरा प्रॉब्लम नंबर 14-3 में अगर हम कैटी स्नो $35 का शेयर लेती है, ठीक है, उसके बाद वो $39 का सेल कर रही है, ठीक है, उसे कितने डॉलर का फ़ायदा हुआ है? $4 का। $4 प्लस $0.80 उसे डिविडेंड मिला होगा, तो नियर अबाउट $4.80 उसका की इनकम हुई है। ये हम इसका डी पार्ट कर रहे हैं, 4.3 नहीं है, ये इसका डी पार्ट कर रहे हैं। ठीक हो गया। उसके बाद वो कहते हैं कि अगर दूसरा में क्या था, बाइंग इट ऑन एक्स डिविडेंड डेट बाय $34.20 रिसीविंग द बट नॉट रिसीविंग द डिविडेंड, लेकिन उसे डिविडेंड रिसीव नहीं होता, तो फिर उसे क्या फ़ायदा होगा? तो वो कितने का परचेज़ करेगी? $34.20 का, और जब वो सेल करेगी कितने का? $39 का। तो अगर आप इन दोनों का दोबारा फ़र्क देखें तो $4.80 आता है। तो इन दोनों में कोई भी फ़र्क नहीं है, तो उसे चाहे वो पहले ख़रीदे चाहे वो बाद में ख़रीदे, उसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा, उसके अर्निंग के ऊपर या उसका रिटर्न के ऊपर उसे कोई भी फ़र्क नहीं आएगा, उसे कोई परेशानी की बात फेस नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है। इसके बाद अब इसका सेकंड पार्ट जो अभी मैं बनाता हूँ उसके अंदर आपको अगला न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। सो टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।